Specifically, we were discussing that what are the important characteristics of the federal constitution and what is the difference between unitary federal and federation. We have discussed all these things, and then I also told you about the important characteristics of the Indian constitution. Few of them were similar to the unitary constitution and few of them were similar to the federal constitution. But yes, at the end of the day, it was very much clear that the constitution is more tilted in the favor of the central government. Now, yesterday I asked you a question that in your syllabus under topic 1, the first case which is mentioned, that is the case of Keshwanand Bharati, in which the Supreme Court has propounded the theory of basic structure. My question was that why in topic 1, which is basically going to deal with the nature of the Indian constitution, the case law of Keshwanand Bharati has been mentioned. Because remember that case you will read again while dealing with the constitutional amendment, means while discussing Article 368 of the Indian Constitution. So let's begin, and it is little bit technical, so I will request all of you to please keep constitutional law with you, means the Constitution of India with you, so that you could read certain provisions and you could understand that what is the complexity and how the things change by the passes of the time. So firstly, you should try to understand certain things. You know, the entire freedom movement, one of the very important reason of the entire freedom movement or entire freedom struggle was the violation of the rights of Indian by the British government. So that's why when the constitution comes in, and it happened not only in India but in the entire world. But once you are going to compare the situation of India with the rest of the world, you will find a distinction also. And what is the distinction? The major distinction is, in majority of the country, the rights of the people were not respected by the ruler. So in majority of the nations, either you are talking about the UK or you are talking about the America, there was a movement for the rights of the citizens. So they were more interested in getting more rights. But I told you earlier also that once you compare the Indian legal model or the Indian jurisprudence, that is a duty oriented society. And I told you this thing, that Indian model of jurisprudence or Indian legal system or Indian philosophy, that was very much aligned with the natural law. और मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि नेचर का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, नेचर बिलीव्स इन द आर्ट ऑफ गिविंग एंड नॉट इन द आर्ट ऑफ टेकिंग. सो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर इज ड्यूटी. इसको आगे हम लोग और भी एलोबरेट करेंगे. सो द बेसिक डिफरेंस वाज इंडियन सोसाइटी वाज अ ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी, but the Western society was more right oriented because their rights were not respected by then rulers. तो वहां पे क्या हुआ, in the constitution and in the public movement they demanded more for right. When the Britishers came to India and they made a model of the governance, they also started violating the rights of the people. And that's why when the constitution comes into the picture, you will find that the most important part of the Indian constitution is part 3 of the Indian constitution, which talks about the fundamental rights, right? तो fundamental right पे इतना जोर क्यों है? Fundamental right पे इतना जोर इसलिए है because the Britishers never respected these rights of Indians. अब इसमें क्या है, once you are going to read part 3 of the Indian constitution, there are different kind of fundamental rights which was given by then Constituent Assembly. And one of the very important fundamental right is right to property. That was mentioned under Article 19(1)(f), and Article 31 also talks about the same. Now, you all are aware that in our constitution, the preamble of the Indian constitution talks about the social, economic and political justice. But how we will ensure, how the government will ensure, how the constitution will ensure about the social, economic and political justice? For that purposes, there are certain principles which are mentioned in the constitution in the name of directive principle of state policy. तो अगर आप political justice तो चलो आपका कहीं थोड़ा सा different हो जाता है, but once you are going to talk about the social and economic justice,
Directive principles of state policy, they are specifically talking about social and economic justice, right? So social and economic justice की जब आप बात करते हैं, then one of the very important part of the social justice is the elimination of poverty, right? Elimination of poverty. And once we are talking about the socialism, the fundamental part of the socialism is there should be all the resources should be in the hands of the government, and there should not be a monopoly of a particular segment, either they are capitalist or industrialist or anybody else. So once the constitution came into the force, after that, मैंने आपको उस दिन भी बताया था in my last lecture that the Constituent Assembly itself admitted that Constitution of India is not a perfect document because it has been created in an imperfect situation. So by the passage of time, it should be changed. That's why it is known as the organic document. It is known as the living organism because it's keep changing. It's not only a document. इसलिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं जाता, इसको जिया जाता है. You must feel it कि what basically the constitution is talking about. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि आफ्टर द पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दैट द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट बिकेम द प्रोविजनल असेंबली for the first provisional assembly. Then the provisional assembly is now realizing that how to implement the idea of the social justice, and while implementing, one of the most important hurdle is zamindari pratha. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जमींदारी प्रथा, मैंने आपको कल भी बताया था कि वंस यू रीड द लिटरेचर, जिसमें कि जो आजादी के पहले के हैं, चाहे वो प्रेमचंद का लिटरेचर हो, बंकिम चंद्र चटर्जी का हो, यू विल गेट प्लेथोरा ऑफ लिटरेचर्स which are basically talking about the जमींदारी प्रथा. तो जमींदारी प्रथा में the land was centralized in the hands of जमींदार, और वो सिस्टम जो था that was created by the Britishers, क्योंकि वो जमींदार को कंट्रोल करते थे, जमींदार नीचे के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और वो जमींदारों को एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसा कमाते थे. और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ this was the method of revenue generation for the British government. लेकिन जब आपको सोशल जस्टिस को या सोशल रिफॉर्म की आपको बात करनी है, then in that circumstances this centralization of land or centralization of money, that should be decentralized. इसीलिए आप देखोगे सब्सिक्वेंटली मिसेस गांधी ने इस पे काफी काम किया था, और बाद में वो प्रीवी पर्सेस एबॉलिशन एक्ट लेकर के आई, जिसमें राजा रजवाड़ों की जिन रियासतों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, in the exchange of that the government used to give them certain money in the form of the compensation. आपको मैंने बताया था पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके बाद हम आजाद हुए, देयर वाज ऑफिशियल मर्जर. काफी समय तक सरकारों ने निगोशिएट करके, बातचीत करके उनकी रियासतों को खत्म किया, और रियासतों को खत्म करने के साथ साथ उनको उसके एवज में दे स्टार्टेड गिविंग सर्टेन पेंशंस टू दोस दोस किंग्स और दोस प्रिंसेस, प्रिंस वगैरह जो होते थे उनको देना शुरू किया. बट सब्सिक्वेंटली दैट वाज अबॉलिश्ड बाय मिसेस इंदिरा गांधी. अर्लियर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ द प्रीवी पर्सेस एक्ट, जिसका अबॉलिशन मिसेस गांधी ने किया था. सो द अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस एक्ट and this nationalization of bank, these two were the very landmark decisions which were taken by Mrs. Gandhi in the direction of social and economic justice. लेकिन यहाँ पे जब हम 1950 की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. If the government is trying to implement the idea of social justice according to the direction of directive principle of state policy, then one of the major hurdle is zamindari pratha. क्योंकि जमींदारी प्रथा को एबॉलिश करके जरूरत किस चीज की है, टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग द लैंडलेस लेबर्स, यानी जमींदारों से जमीन ले लो और उसको लैंडलेस लेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो. बट हाउ दे कैन डू इट, बिकॉज देयर इज अ हर्डल. एंड व्हाट इज द हर्डल? द हर्डल इज राइट टू प्रॉपर्टी. बट अल्टीमेटली द बिहार गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, they dared and they introduced a bill which was subsequently converted into an act, and the name of the act is the Bihar Land Reforms Act 1950. What was the purpose of this legislation? The purpose of this legislation, land reform means obviously in a way to acquire the land from the zamindars and to distribute it among the landless laborers. But what is the problem? Obviously जिसकी संपत्ति जाती है उसको प्रॉब्लम होती है. So that was not in the interest of the zamindars. So what basically zamindars have decided to do, they challenge this legislation before the court
on this ground that it violates their fundamental right which is available to them under the Constitution of India. What Supreme Court has, what High Court, the decision or judgment by the High Court, what High Court has decided in this case, the High Court declared that because this is in the violation of right to property, which is a fundamental right, so this legislation is unconstitutional. ये unconstitutional है. अब जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, देन ऑब्वियसली नाउ द गवर्नमेंट इज बैक टू द स्क्वायर. बैक टू द स्क्वायर का मतलब द लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस लेबर, और जमीन वापस जमींदारों के पास चली गई. बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी मच अवेयर दैट इन दिस वे they cannot implement the idea of social justice. So what they have decided ultimately they have decided to introduce the first constitutional amendment act. इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1951 and it was the same assembly, the same members which were the part of the constituent assembly. यानी जिस constituent assembly ने constitution बनाया, the same assembly has introduced first constitutional amendment act in the year 1951, and through that legislation they have added article 31A एंड आर्टिकल 31B. ये दोनों जो है आपके 31A और 31B, ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड है. दोनों के दोनों जो है वो आपके बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है. बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल थ्रू आर्टिकल 31B. Through Article 31B, a new schedule was added in the Indian Constitution, and that was 9th schedule. 9th शेड्यूल ऐड कर दिया क्योंकि सरकार को समस्या क्या हो रही है, वंस दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस थ्रू एबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा और इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, द ओनर्स आर मूविंग टू द कोर्ट because right to property is there, then in that circumstances they are getting remedy. तो सरकार को एक ऐसी रेमेडी चाहिए थे जिसके थ्रू वो इस रिव्यू को, यानी the people should not be allowed to challenge the legislation before high court or before high courts or the Supreme Court. So for that purpose, through Article 31B, Schedule 9 was created. And what Schedule 9 says, what Article 31B says, whatever subject matters have been put in Schedule 9, they cannot be reviewed by any court. तो आपने क्या किया, आपने क्लियरली मेंशन कर दिया 31B के थ्रू कि वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू शेड्यूल, एंड व्हाटएवर सब्जेक्ट मैटर्स आर गोइंग टू बी पुट इन 9th शेड्यूल, they cannot be reviewed by any court. So ultimately in this way you are trying to reduce the power of judicial review of the Supreme Court and the High Courts. तो इनडायरेक्टली आपने एक राइडर लगा दिया कि 9th शेड्यूल में अगर हमने कुछ करके डाल दिया तब आप उसको एक्चुअल में आइडियली आप क्या कर सकते हो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो. तो इसने क्या किया, दिस थिंग हैज गिवन अपर हैंड टू द गवर्नमेंट्स. और अपर हैंड कैसे दे दिया, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज आप याद रखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल देयर. But now what governments are doing in the name of land reforms, if they are going to make a legislation, they are going to put that legislation in Schedule 9. And ultimately what is happening, because the legislation has been put in Schedule 9, that cannot be reviewed by any court. उसका review नहीं किया जा सकता है. और इसको करने के लिए इसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्वियसली आपने अमेंड किया, मैंने आपको बोला 31A एंड 31B को ऐड किया गया, और 31A और 31B के साथ साथ आपने कर दिया कि the subject matters which are going to be put in the 9th schedule that cannot be reviewed. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या रिव्यू नहीं किया जा सकता, इसको आप मेंशन कर सकते हो क्या. इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी जो कि इसमें टेक्निकल है, एंड फॉर दैट पर्पस आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 आप खोलिएगा, हालांकि इसको डिटेल में हम बाद में बताएंगे, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है. दैट्स व्हाई यू शुड ओपन अप योर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13. I am just going to give you a brief idea about Article 13. You just listen me very carefully. Article 13 has been divided. Original Article 13. Original Article 13 was divided into 3 parts: 13.1, 13.2 and 13.3.
13(1) talks about pre-constitutional laws. Hello. 13(2) talks about post-constitutional laws. And 13(3) talks about laws. तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा. एक चीज आपने देखा कि when the Britishers left India and the power, there was a transfer of power from the British government to the government of India. पावर का आपने ट्रांसफर कर दिया. पावर का ट्रांसफर होने के बाद it was not possible for the government of India to change the entire legislation overnight. अभी तक नहीं चेंज हुआ. 70 साल बाद भी आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेशन लाइक द एविडेंस एक्ट हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बहुत सारे लेजिस्लेशन जितने आपके इंपॉर्टेंट हैं, एविडेंस एक्ट जैसे मैंने आपको बताया, आईपीसी हो गई आपकी, all these legislations they were enacted by the British Parliament and they are still prevailing. अभी भी वो चल रहे हैं. तो उसको क्या करना था? It was not possible to remove to repeal all the legislations. तो उस समय when the constitution came into the existence, even at that point of time there were several British legislations which were in operation. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे क्रिएटेड अ राइडर. एंड व्हाट इज द राइडर? द राइडर इज एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Listen me very carefully. Any pre-constitutional law which is in the violation of Part 3 of the Indian Constitution shall be unconstitutional. Unconstitutional का मतलब it shall be void. Void का मतलब unconstitutional. कहाँ तक unconstitutional हो जाएगा? To the extent of its inconsistency with Part 3 of the Indian Constitution. Part 3 से जहां तक इनकंसिस्टेंट है वहां तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात मैंने आप लोगों ने देखी कि क्रांतिकारियों का जो पूरा मूवमेंट था उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो मूवमेंट का था वो ये था कि दे यूज्ड टू स्पीक अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए बड़े सारे लेजिस्लेशंस बना दिए थे एंड देयर वाज अ क्लॉज ऑफ प्री सेंसरशिप. Without obtaining the consent of the British government, you were not allowed to publish a newspaper or the content used to be regulated by the British government. प्री सेंसरशिप थी, पोस्ट सेंसरशिप नहीं थी, प्री सेंसरशिप थी. और आपने देखा है बहुत सारी मूवीज में आपने देखा है क्रांतिकारी लोग इसी को वायलेट करते थे. चोरी छुपे लोग प्रेस चलाते थे. तो जब भी वो लोग पकड़ में आते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी बिकॉज दे वर वायलेटिंग द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन. बट वंस द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू द पिक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू एवरी सिटीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वो दे दिया गया. ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं था, अब यहाँ पे दे दिया गया. तो अब क्या हुआ कि ऑल दोस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन which are in the violation of Part 3, like for the sake of in this example, which are the provisions which are in the violation of Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, that shall be void to the extent of its inconsistency. वो void हो जाएगा to the extent of its inconsistency. जितना वो inconsistent होगा, बहुत डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी आपको, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, उतना वो void हो जाएगा. So 13(1) is basically going to talk about the pre-constitutional laws which were valid till 26th January 1950. But after 26th January 1950, either the entire legislation or certain provision of few legislations, they became void because they were inconsistent with Part 3 of the Indian Constitution, right? So that was Article 13 subclause 1. Now let's come to Article 13 subclause 2. 13 subclause 2 talks about post-constitutional laws. अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या हुआ? आजाद होने के बाद जो असेंबली बनी, जो पार्लियामेंट बनी, उसमें इंडियंस थे. तो इंडियंस जो लेजिस्लेशन बनाएंगे, द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लेजिस्लेशन विच इज इन द वायलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द Indian Constitution. So 13(1) is talking about pre-constitutional law. 13(2) is talking about post-constitutional law. So any post-constitutional law which would be in the violation of fundamental right shall be declared as unconstitutional up to the extent of its inconsistency with Part 3 of the Indian Constitution. दोनों में सिर्फ क्या एक अंतर हुआ कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे they will not be void ab initio, क्योंकि वो void उस दिन से होंगी the date on which the constitution comes into the existence, means on the date of 26 January 1950. But all the post constitutional laws which are void or which are
which are void because they are in the violation of Part 3 of the Indian Constitution, they would be void ab initio, क्योंकि जब वो बने तो आपका संविधान एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए जैसे ही वो इनकंसिस्टेंट होंगे वो void हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इंसेप्शन, क्योंकि जो असंवैधानिक है अगर वो 3 साल 4 साल चल भी गया तो भी once the Supreme Court is going to declare that they are unconstitutional, they would be void from the date of the inception of law. So the basic difference between 13(1)(a) and 13(1) and 13(2) is 13(1) is talking about pre-constitutional laws which are valid till 26 January 1950, and after that they became void only up to the extent कहाँ तक, जहां तक they are inconsistent with Part 3 of the Indian Constitution. 13(2) is talking about the post-constitutional laws which would be void ab initio if that is in the violation of Part 3 of the Indian Constitution. ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोली, the term used is pre-constitutional law, post-constitutional law. Important question is what is the meaning of law? अब लॉ जब आप पढ़ते हो तो जैसे आप लोग तो अभी जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा पढ़ चुके हो, एक होता है लॉ, एक होता है दी लॉ. तो दी लॉ मींस वी आर टॉकिंग अबाउट a specific legislation like the Constitution of India, the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code. But law in itself is a very broad concept. इसलिए जब आप jurisprudence पढ़ते हो तो आप law पढ़ते हो, लेकिन जब आप substantive law पढ़ते हो तब आप दी लॉ पढ़ते हो. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि does the meaning of law means only legislation or any other thing? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सरकार कितने तरीके से वर्क करती है. एक चीज आप और याद रखिएगा, गवर्नमेंट के 3 एस्पेक्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट, जिसको कि हम नॉर्मली गवर्नमेंट बोलते हैं, मींस द गवर्नमेंट व्हिच इज इन द पावर. लेजिस्लेचर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, मींस पार्लियामेंट. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस इज आल्सो द जुडिशियरी. जुडिशियरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस. हम तीन ही की बात करते हैं, but I personally believe the fourth one is the most important, and that is the citizens of India who are also the part of the governance. लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसे की गई है कि सब कुछ सरकार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम सिर्फ राइट ओरिएंटेड है, हम सिर्फ राइट की बात करते हैं. The governance can never be successful unless and until the citizens are inclined to accept those legislations. That's why remember the role of the citizen is very much important in good governance. जैसे अभी स्वच्छता का अभियान चला तो ये सरकार क्यों चला रही? दैट शुड बी आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने देश को साफ रखें, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए आप याद रखिएगा कि आचार्य विनोबा भावे या जो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जो लोग हुए, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस व्हिच गिव्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट. क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने स्टेट को ट्रांसफर कर दी. इसीलिए जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए या विनोबा भावे को करिए तो वो इसको फेवर नहीं करते. दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस गवर्नमेंटल मॉडल. और जो पुराना मॉडल था वो क्या था? दैट वाज सोसाइटी ओरिएंटेड. इसी को कहते थे सोशल गवर्नेंस. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल गवर्नेंस हैज बीन डाइल्यूटेड लार्जली, और इसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है जो हम लोग बाद में देखेंगे. पर यहाँ पे सवाल ये आता है what is the meaning of law? Once I'm talking about pre-constitutional law or once I'm talking about post-constitutional law. For that purpose, you need to read Article 13 subclause 3. इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सिर्फ मुझे फॉलो करना. Article 13 subclause 3. In this article, unless the context otherwise requires, law includes ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. Law enforced includes law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution. अब यहाँ पे जो मेन चीज आप है वो समझो. आप मैंने आपको बताया any legislation, pre-constitutional law और post-constitutional law. अब लॉ का मतलब क्या होगा, इसके लिए आप 13(3) को पढ़ोगे तो 13(3) में लॉ का मतलब हो गया ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज. मतलब इनमें से किसी के थ्रू भी आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते. एंड इफ यू आर गोइंग टू वायलेट फंडामेंटल राइट थ्रू एनी ऑफ दीज मीन्स, जैसे आपने देखा आपका सती प्रथा चलो पहले खत्म हो गई थी, आपका बाल विवाह था, ये कस्टमरी, कई लोग हैं कस्टम है, तो कस्टम है लेकिन ये क्या है, दैट इज नॉट अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने इसको बैन कर दिया.
ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये कस्टम का एग्जाम्पल हो गया। सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस बनाया एंड द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस हैज बीन चैलेंज एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट द ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिकॉज आपको आगे मैं बताऊंगी, देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस between the strength or the power of the ordinance or the proper legislation which has been passed by or made by the parliament. The only difference जो होता है वो होता है टाइम पीरियड का, because ordinance का एक limited time period होता है, while the legislation is permanent unless and until the government is going to or the parliament is going to repeal that. तो यहाँ पे एक important चीज आपने देखी, law मतलब क्या होगा, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन में law मतलब should be read in context to article 13 sub clause 3. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में शुड बी रेड, द टर्म लॉ शुड बी रेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3. अब यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीज क्यों बताई, यहाँ पे दो चीजें आप नोटिस करिएगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज 13(3)(a) में जब आप लॉ पढ़ रहे हो ना, तो इसमें इन्होंने एटसेट्रा टर्म यूज नहीं किया. जैसे कहां पे खत्म कर दिया, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, दे मे यूज द टर्म एटसेट्रा आल्सो, बट दे हैवंट यूज्ड इट. So what it means, this the definition is exhaustive and any new term cannot be added. क्या इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि एटसेट्रा टर्म अगर ऐड करते तो कुछ और चीजें भी शायद आ सकती थी, पर उन्होंने एटसेट्रा टर्म यूज ना करके इसको क्लोज कर दिया. So the definition is not open ended but it is closed ended because the term etc has not been used under article 13(3)(a). लेकिन इसमें तीन चीजें मिसिंग हैं. कौन सी चीजें मिसिंग हैं? Three important things which are missing here in this case is, the first one is the constitutional amendment which is not mentioned here. The second thing is the judgment pronounced by courts, that is not mentioned here. And the third thing is personal laws which is not mentioned here. तो यहाँ पे लॉ में तीन चीजें इसमें मेंशन नहीं है, इसको आप ध्यान से समझ लेना. प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट्स नॉट मेंशन्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट मेंशन्ड, पर्सनल लॉज नॉट मेंशन्ड. तो ये तीन चीजें जो मेंशन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज दीज थ्री टर्म्स आर नॉट यूज्ड इन सेंस ऑफ लॉ, so if somebody is going to violate the fundamental right through these three ways, then they will be allowed and that would not be reviewed by the court because term law does not include these three things. तो इसमें आपने, इसको मैंने तीन चीज बताई, इसमें याद रखिएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पर्सनल लॉ. इसीलिए आप देखोगे जो सायरा बानो का ट्रिपल तलाक का केस है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्ली ये है कि दिस आर्टिकल 13(3)(a) टर्म लॉ डज नॉट इंक्लूड पर्सनल लॉज. तो पर्सनल लॉज से इवन इफ समथिंग इज गोइंग टू बी क्रिएटेड व्हिच इज इन द वायलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that cannot be reviewed by the court. उसको कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है. लेकिन उसको सायरा बानो के केस में माना नहीं, और ट्रिपल तलाक का जो जजमेंट आया वो आपको पता है. और उसके अलावा भी उसके पहले जो आपके पर्सनल लॉज होते हैं, either that is the Hindu law, the Christian law or the Muslim law, they are basically customary laws, so they are the part of the custom. So the customary law which has been codified, और इसमें एक रीजन ये भी था कि हिंदू कस्टमरी लॉ को ऑलरेडी कोडिफाइड किया जा चुका था. सो दैट इज आल्सो अ रीजन दैट इन द केस ऑफ सायरा बानो नाउ इट इज क्लियर दैट द पर्सनल लॉज विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13(3)(a). बट हियर another question which is very important for the purpose of Keshavanand Bharati case, and that issue is the term law under article 13 sub clause 3 does not include कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इसमें अब आप देखिए केसेस कैसे आते हैं. राइट डाउन द नेम ऑफ फर्स्ट केस. द नेम ऑफ द फर्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड इन द ईयर 1951. मैंने आपको बताया था थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आर्टिकल 31A एंड 31B वाज इंट्रोड्यूस्ड. शंकरी प्रसाद का केस आता है 1951 में. इसमें क्या किया गया था, इसमें यह कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने किया है उसके थ्रू ऑब्वियसली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार्स. तो आपने क्या किया, 368 का इस्तेमाल करके संविधान का संशोधन किया. संशोधन कहाँ किया, 31A और 31B जोड़ा, और उससे आपने क्या किया, फंडामेंटल राइट को वायलेट किया. कौन सा राइट को वायलेट किया, राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट किया, विच इज द फंडामेंटल राइट. लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठाया गया
कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 सब क्लॉज 3 में आता ही नहीं है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को वायलेट करने पे क्या उसका रिव्यू हो सकता है क्या? तो एक चीज और याद देखिएगा, जब आप 13(1) एंड 13(2) में देखते हो ना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकंसिस्टेंसी, तो इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको आप याद रखिएगा, द पार्लियामेंट इज गोइंग टू पास अ लेजिस्लेशन, बट टू चेक द वैलिडिटी, to check the constitutionality, this is the responsibility of the Supreme Court and the High Court. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226, they will exercise their power. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिव्यू करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर आती है जहां से, दैट इज द फंडामेंटल आर्टिकल इज आर्टिकल 13 which gives power to the Supreme Court, which gives authority to the Supreme Court and the High Court to exercise their power which is given to them under Article 32 and 226 to review the legislation or to check the constitutionality. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई 360 आर्टिकल 13(3) में लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो टर्म यूज ही नहीं है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया गया, देन बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, दैट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट. तो इसमें सवाल ये था कि whether the constitutional amendment will lie under the category of law or not. तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे चीजें कैसे चेंज होती हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, if land reforms are not going to be implemented, then what would be the consequences? The zamindars will continue to possess their property in the same manner. वो उसी तरीके से काम करते रहेंगे. तो क्या होगा? Then the idea of social and economic justice, that is going to be severely hit. मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप मेरी बात याद रखिएगा. व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंटरप्रिटेशन? और इसको आप सुकरात को जब पढ़ोगे, देन द सुकरात हैज सेड द सेम थिंग. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू देयर इज अ लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द रोमन्स, ग्रीक्स एंड द इंडियन फिलॉसफी, या भारतीय दर्शन जिसको बोलते हैं. एंड द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज, इन द केस ऑफ conflict between the interest of the individual and the interest of the society, the interest of the society should be protected first. In the case of conflict between the social interest and the national interest, the national interest should be protected first. तो लास्ट प्रायोरिटी इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नेशनल इंटरेस्ट होगा, सेकंड प्रायोरिटी आपका सोशल इंटरेस्ट होगा. यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स, then the concept of the social justice cannot be implemented, means the interest of the majority of the population is going to be adversely affected. तो यहाँ पे it is also a matter of convenience for the Supreme Court, because remember, इसीलिए मैंने आपको बोला कि संविधान को स्पिरिट में पढ़ते हैं, वर्ड्स में नहीं पढ़ते. अगर आप वर्ड्स में पढ़ोगे तो आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, बिकॉज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन दिस केस, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन is vested under Article 368 and Article 13 subclause 2 does not include constitutional amendment. Means constitutional amendment is not a law. Because it is not a law, it cannot be reviewed by the court. तो इसका हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं. और ये जो पार्लियामेंट ने 31 और 31A और 31B को ऐड किया है, that is perfectly fine, and through that 31B they have added 9th schedule, and to implement the idea of social justice, if their government, the state government, is going to pass any legislation related with land reforms, they are going to put it under schedule 9 of the Indian constitution, then that cannot be reviewed by the court. The reason being, reason क्या है? reason ये है कि यहाँ पे 13 सब clause 3 में term law does not include कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो इसका मतलब एक चीज आप समझ लेना, पहले कैसे काम किया. 31A आया, 31B आया, उससे 9 शेड्यूल क्रिएट हुआ. अब अलग अलग स्टेट ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेशन बनाया और उन लेजिस्लेशन को उठा के 9 शेड्यूल में रख दिया. अब 9 शेड्यूल में रख दिया तो उनका रिव्यू नहीं हो सकता. तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बना करके जमींदारों की जमीन को ले रही है, और राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी वहां पे है, पर वो 9th शेड्यूल में तो रिव्यू नहीं हो सकता. तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की पावर पे एक रिस्ट्रिक्शन था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, क्योंकि 13 सब क्लॉज 3 में जब आप लॉ की बात करते हो, देन द टर्म लॉ डज नॉट इंक्लूड
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चूंकि नहीं आता इसमें, इसलिए इसका रिव्यू नहीं हो सकता. लेजिस्लेशन इज परफेक्टली valid and amendment is also perfectly valid. So this was the first case of Shankari Prasad versus Union of India. अब जब आपका 31B के थ्रू 9 शेड्यूल आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट्स का हौसला बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब जो भी लेजिस्लेशन और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पास करेंगे दे विल पुट इट अंडर 9 शेड्यूल, और जब 9 शेड्यूल में रख दिया तो उसका रिव्यू नहीं हो सकता. बट इट वाज चैलेंज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. सो द सेम इशू वाज रेज्ड अगेन इन द केस ऑफ सज्जन सिंह versus the state of Rajasthan. The year was 1965. तो सज्जन सिंह versus state of Rajasthan के केस में the same issue has been raised again. The constitutionality of 17th Constitutional Amendment Act, which was added through the constitutionality of 7th Constitutional Amendment Act was challenged. Same issue था कि right to property को क्या violate किया जा सकता है क्या, तो इसमें the Supreme Court has reaffirmed the decision of शंकरी प्रसाद, और रीअफर्म करके क्या कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं होगा, और चूंकि लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं है, सो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट even if the fundamental rights are going to be violated, then too they are beyond the purview of judicial review of the Supreme Court. So they are beyond the power of the judicial review of the Supreme Court. That was again held by the Supreme Court in the case of Sajjan Singh versus the state of Rajasthan. लेकिन इसका एक खतरनाक आउटकम हो सकता है. वो आउटकम क्या हो सकता है? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पार्लियामेंट का जो मन हो वो अमेंड करे, और अमेंड करके इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, एंड रिमेंबर अमेंडमेंट मींस दैट मे बी इन द पॉजिटिव सेंस एंड दैट में आल्सो बी इन द नेगेटिव सेंस. आप सपोज करो पार्लियामेंट ने सोचा कि राइट टू लाइफ को ही हम अबॉलिश कर देते, क्या जरूरत है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर दें, या किसी और पार्ट को कर दें, या कुछ ऐसा चेंज कर दें हम कि उसका एक्चुअल में पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाए. द आउटकम or the possible impact of the Shankari Prasad judgment is that is going to give unlimited power to the legislature, and that power may be utilized by the parliament in any ways. तो सज्जन सिंह के केस में आप एक चीज याद रखिएगा, though the Supreme Court has upheld the validity of Shankari Prasad case, लेकिन इसमें 2 जजेस जो थे उनको इसकी सीवियरिटी का अंदाजा हो गया that in the future the things may take very ugly shape, and these 2 judges were Justice Hidayatullah and Justice Mudholkar. इन्होंने फोर्सी किया था कि आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. और मैंने आपको एक बार एक चीज बताई थी कि जब आप लॉ पढ़ते हो तो स्पेशली जजेस का विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आज अगर हमें जजमेंट दे रहे हैं देन व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस. इसीलिए एक चीज मैंने आपको और बार बार बोला है कि वॉट एवर इज इन द एप्लीकेशन, constant impact analysis is very much important. जज ने बोल दिया तो सही है, मैंने बोल दिया तो सही है, आपने बोल दिया सही है, ऐसा नहीं है. इम्पैक्ट एनालिसिस उसकी चेक करनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो इतने साल में इसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, एंड इफ दैट इज नॉट as per our expectation or that is not according to the standard which are prescribed or which are presumed. यहाँ पे जस्टिस हिदायतुल्लाह को, जस्टिस मुधोलकर को समझ में आ गया कि पार्लियामेंट के हाथ में हमने बहुत तगड़ा हथियार दे दिया है. आज ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, which is a fundamental right, but tomorrow they can amend any part of the constitution and they will start putting that in 9th schedule, and that would be beyond the reviewing power of the Supreme Court and the High Court. तो यहाँ पे जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस मुधोलकर ने एक डाउट रेस किया over the unfettered power of parliament to amend the constitution and curtailing fundamental rights. ये जो इसमें जो minority इनका जो dissent है, वही आप एक तरीके से कह सकते हो कि वही जाकर के आगे केशवानंद भारती के केस में ratio decidendi बनता है. So it happens in many cases where the minority judgment in one particular case is going to be the ratio of another case. तो यहाँ पे जस्टिस मधुलकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने बात उठाई थी कि अनफेटर्ड पावर देना पार्लियामेंट के हाथ में ठीक नहीं है, बट द मेजॉरिटी जजमेंट फेवर the decision of Shankari Prasad, and again they repeated that the constitutional amendment is not law under article 13 subclause 3. तो इससे अगर लोगों की फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता भी है तो भी उसका रिव्यू
नहीं किया जा सकता। अब सरकार का हौसला और बड़ा, सरकार और अमेंडमेंट लेकर के आई। इसी तरीके के अमेंडमेंट होते रहे, अलग अलग स्टेट्स अपने यहाँ रिफॉर्म लेकर के आ रहे थे और उनको 9 शेड्यूल में डाला जा रहा था। फिर जो आपका नेक्स्ट केस आता है, ये बड़ा हिस्टोरिकल केस है, एंड दैट वाज द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड इन द ईयर 1967। इसमें क्या किया गया 1967 में? द पंजाब Security of Land Tenure Act 1953 was passed and it was included in 9th schedule। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि इन्होंने किया कि उसको पास किया, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेनेंसी एक्ट 1953, और पास करके उसको कहाँ रख दिया? उसको 9th शेड्यूल में रख दिया। अब 9th शेड्यूल में रख दिया, देन दैट कैन नॉट बी रिव्यूड, बट अगेन दिस वाज चैलेंज्ड बाय गोलकनाथ के केस में इसको दोबारा चैलेंज किया गया। यहाँ पे गोलकनाथ का केस आते आते, अब आप देखिए 51 में शुरू हुआ, अब 67 तक आ चुके हो। यहां तक आते आते the circumstances has been changed and Supreme Court has also sensed something which they were not realized earlier, क्योंकि उस समय सरकार का इंटेंशन कुछ और था। धीरे धीरे सरकारें कहीं कहीं और भी हाथ पैर मारने लगी, और आगे हम लोग बताएंगे कि सरकारों ने कैसे जो है 9 शेड्यूल का मिसयूज किया है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगी मैं। यहाँ पे सिर्फ हम इससे रिलेटेड रहेंगे कि गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज रियलाइज्ड दैट they have actually given unfettered power in the hands of the parliament. Today they are attacking right to property, but tomorrow they can attack entire constitution। तो ये तो पूरे फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक चीज आप याद रखिएगा, जजमेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि once you are going to pronounce a judgment or once you are going to analyze a legislation, the theory of consciousness becomes very much important। theory of consciousness of that basically guides you, और गाइड में क्या होता है कि आपको लग जाता है कि ये तो गलत हो रहा है। अब अगर आपको एंड रिजल्ट पता है कि गलत है, नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लीगल माइंड? द ड्यूटी ऑफ द लीगल माइंड इज टू जस्टिफाई द एंड रिजल्ट। इनके समझ में आ गया कि अनफेटेड पावर हमने पार्लियामेंट को दे दी है, तो ये गलत है, हमें इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकेंगे कैसे? प्रॉब्लम रोकने में ये आ रही है कि देयर आर ऑलरेडी 2 जजमेंट्स व्हिच आर फेवरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप बार बार पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको कमियां पकड़ में आ जाती हैं। पहली कमी इनको क्या पकड़ में आई? द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज रियलाइज्ड बाय द जुडिशरी इन द केस ऑफ गोलकनाथ, ये आर्टिकल 368 पे आए। जब आप 368 पढ़ोगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी का नहीं, देन 368 बेसिकली प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 in the original constitution prescribes only the procedure to amend the constitution। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि 368 is prescribing only the procedure but it is not talking about power। तो प्रोसीजर तो दिया है पर पावर तो दिया नहीं है। अब अगर पावर नहीं दिया है तो फिर आप पावर कहां से ले रहे हो, पहले हमें ये बताओ। अब ये देखो, प्रोसीजर और पावर में बहुत अंतर होता है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर प्रोसीजर है तो पावर कहीं ना कहीं होना चाहिए। बिना पावर के प्रोसीजर क्या करेगा? लेकिन सरकार ये तो मान गई कि 368 प्रिस्क्राइब्स ओनली प्रोसीजर एंड नॉट द पावर। सो इन द केस ऑफ गोलकनाथ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आपको पावर देना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर के साथ पावर भी प्रिस्क्राइब करते। So what it means? It means the rights which has been given by the Constituent Assembly to the people of this country, that cannot be taken away by the parliament in any ways। So basically part 3 of the Indian Constitution that is unamendable। और अगर आपको पावर लेनी है तो पावर लेने के लिए यू शुड कॉल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन गिव यू दैट पावर थ्रू विच यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने 2 काम किया, एक तो इन्होंने फोर्स ही कर लिया कि आगे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, तो उसके ऊपर राइडर लगा दिया। लेकिन राइडर ऐसा लगा दिया कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट 3 को अनअमेंडेबल बना दिया। एंड साइमल्टेनियसली दे आल्सो सेड that term law under article 13 subclause 3 also includes constitutional amendment। ये constitutional amendment को भी include करता है। तो if the government is going to pass something through the amendment of the constitution, that can be reviewed by the court।
और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिव्यू पावर को इस तरीके से आप ले नहीं सकते हो। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि द फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, there is not even a single provision which is talking about the power of the power to amending the constitution. 368 prescribes only procedure. अगर आप अमेंडमेंट की पावर लेना चाहते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे, ये अनअमेंडेबल हैं। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर कुछ भी आप ऐसा करते हो, then in that circumstances constitutional amendment is law, and because it is law that can be reviewed by the high court as well as by the supreme court. ये आपका गोलकनाथ का केस था। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज बोली, इन्होंने बोला इनके जजमेंट के हिसाब से पीछे के सारे अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि फर्स्ट, फोर्थ एंड 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर इट इनवैलिड बिकॉज आवर जजमेंट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, सो इट विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। इसका फ्यूचर में इंपैक्ट होगा, पास में जो चीजें हो गई हैं उसको हम चेंज नहीं करने जा रहे हैं। अब ये जो काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, इससे क्या हुआ, इससे सरकार जो थी, मिसेस गांधी वाज देन इन द पावर, और मिसेस गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सटेंशियली कई बार चेंज करने की कोशिश करी। तो पार्लियामेंट को क्या लगा, पार्लियामेंट को ये लगा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टली अटैक्ड ओवर देयर पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसमें इन्होंने क्या किया, अब सरकार को क्या करना है, सरकार को इसमें ये करना है कि जो जो ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, they wanted to remove all those objections। तो ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया, 24वां किया, 25वां किया और 29वां किया। ये 3 अमेंडमेंट किए थे, 24, 25 और 29। उसमें आप एक चीज ध्यान लीजिएगा कि कैसे पार्लियामेंट ने काम किया, बिकॉज यस, मिसेस गांधी वाज अ वेरी पावरफुल लेडी एंड शी वांटेड टू रिटेन मैक्सिमम पावर इन हर हैंड्स। जुडिशरी का इंटरफेरेंस उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये जो आपका 24वां, 25वां और 29 अमेंडमेंट आया है, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, इसको आप ये देखिए। पहला ऑब्जेक्शन क्या था सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ गोलकनाथ, द फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज 368 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर एंड नॉट अबाउट द पावर। तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, 24वें संविधान संशोधन से 368 को अमेंड किया। एंड व्हाट वाज द अमेंडमेंट, द अमेंडमेंट वाज पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या था कि आप बोल रहे थे ना कि पावर हमारे पास नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर ही प्रिस्क्राइब करता है। हमने संविधान का संशोधन किया और अब हमारे पास पावर भी है, और उस पावर से हम प्रोसीजर को एक्सरसाइज करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड करेंगे। लेकिन इसमें दूसरा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ, सो इट कैन बी रिव्यूड अंडर आर्टिकल 13। उसको नलिफाई करने के लिए आर्टिकल 13 वाज अमेंडेड थ्रू आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसको अमेंड करके आप अगर देखोगे तो अब आपको एक नया आर्टिकल मिलेगा, एंड दैट इज आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 which was added through 24th constitutional amendment act। and what 13 sub clause 4 says, 13 sub clause 4 ये कहता है कि constitutional amendment will not be considered as law। तो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज लॉ, दे एडेड, that means the parliament has amended the constitution, added a new clause, article 13 sub clause 4, which clearly says that the constitutional amendment shall not be considered as law। यानी constitutional amendment law नहीं होगा, और अगर law नहीं है तो उसका कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती by exercising their power given to them under article 13 sub clause 2। तो हमारा जो भी मन हो उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। और तीसरा इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया था 13(1)(c) इन्होंने ऐड किया था थ्रू 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 13(1)(c) में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस इज अ वेरी बिगर कॉन्सेप्ट, सो while implementing the idea of the social justice which is given in the constitution in the form of the direction, if we are going to violate or unintentionally, even if there is a violation of article 14 and 19, then too the Supreme Court will not be able to review that on the basis of this, that they are in the violation of article 14 and 19। तो उन्होंने क्या बोला कि सोशल जस्टिस हमारे लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो सोशल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स अगर एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, और हमने सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई,
तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू इस बेसिस पे नहीं करेगी कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है. इट मींस अगेन द पार्लियामेंट वाज सीकिंग मोर एंड मोर पावर एंड दे वांटेड टू मेक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बियॉन्ड द reviewing power of the Supreme Court and the High Court. So there are basically these amendments which were included in the Constitution. The purpose is clear. They just wanted to nullify the effect of the Golaknath judgment. But again, this case, these amendments were challenged in the case of केशवानंद भारती. क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती एक केरला का मठ है, उसके जो है वो एक सीनियर हेड है और उनकी मठ की कुछ जमीन थी जिसको कि केरला सरकार ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक्वायर कर लिया. अब केरला की गवर्नमेंट ने जब उसको एक्वायर कर लिया, then the केशवानंद भारती moved to the court for the protection of his right which was available to him under article 26. 26 क्या कहता है? मैनेजिंग योर ओन रिलीजियस प्रॉपर्टी. आप अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं. ये 13(3) कहता है, सॉरी आर्टिकल 26 कहता है. तो 26 के प्रोटेक्शन के लिए केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में आते हैं एंड इन दिस केस 24, 25 एंड 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज. केशवानंद भारती का जजमेंट क्या था, इसमें जजेस की क्या ओपिनियन थी और यहाँ पे जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम लोग कल देखेंगे. बट आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट टेक्निकलिटीज आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड हाउ दिस जजमेंट वाज टेक्निकल. सो ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टर्म लॉ एंड वेदर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ constitutional amendment under article 13 sub clause 3. So that's all on my part. If you want to ask any question you may ask. आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो तो. चीजें समझ में आ गई हैं आपको? इसको एक बार पढ़ लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होती है इसमें. Things are clear? Yes, madam. Ma'am, it's very much clear. We'll just read once again. We will have to read. The entire lecture was very enlightening. Thank you so much. We really appreciate. पर एक बार तुम लोग पढ़ लेना क्योंकि इसमें इस कंफ्यूजन बहुत होती है शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह एंड गोलकनाथ के केस में, और फिर केशवानंद भारती के केस में क्या हुआ तो मैं कल बताऊंगी. बट इसको आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन रहती है कि क्या कह रहे हैं. ठीक है. सो वी विल मीट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. मैम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो बता रहे थे, एक बार आप वो पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज. वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है क्या? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कभी. द फर्स्ट इज द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, द सेकंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द थर्ड वन इज द पर्सनल लॉ. ये तीनों वहां पे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है. लेकिन अब जो आपका ये खैर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. बट ये तीन चीजें समझ में आ गई ना, तीन चीजें उसमें इंक्लूडेड नहीं है और हमेशा इन तीन चीजों को लेकर के इश्यूज उठते हैं. तो इसको आगे हम लोग देखेंगे. ठीक. तो चलो फिर मेरी नेक्स्ट Ma'am, I have a कल doubt. मिलते हैं. हाँ पूछो. Ma'am, जैसा कि आपने कहा कि आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो जैसे कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जो हमने सीआरपीसी में पढ़ा है, लाइक सेक्शन 154 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट दैट कि कोई हायर अथॉरिटी सीनियर पर्सन अपने जूनियर को डायरेक्ट कर सकता है टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पे इम्प्लाइड पावर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और कहा जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, बट टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एन एफआईआर. सो इट इज मैंडेटरी टू make and register an FIR under. बोलो. Ma'am, am I audible? हाँ you are audible, very much audible. तो मैम जैसे कि अगर एक सुपीरियर ऑफिसर बोलता है